اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، ریاست آسام سے پھر بڑی شرم کرنے والی خبر سامنے آ رہی ہے۔ ایک نابالغ طالبہ یعنی ایک چھوٹی اسٹوڈنٹ بیٹی، اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی، یعنی جسے ہم اپنی زبان میں کہیں گے سیکسول ہریسمنٹ، گینگ ریپ، جس کو لے کر اب جنتا میں غصہ ہے۔ دکانیں بند کر کے لوگوں نے گزشتہ کل وہاں پر احتجاج کیا، آندولن کیا، حالات بڑے کشیدہ ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ آسام نے اس واقعے کی نندا کی ہے، مذمت کی ہے اور سخت کارروائی کی وارننگ دی ہے۔ آسام کے ناگاؤں ضلع میں 14 سالہ لڑکی کے ساتھ درندگی کا یہ واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں 3 افراد نے ٹیوشن سے گھر واپس آتی لڑکی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی۔ اس واقعے کے بعد ریاست آسام میں احتجاج آندولن شروع ہو چکا ہے۔ آسام میں بھی آپ جانتے ہیں کہ بی جے پی کی ہی یوں سمجھے کہ حکومت ہے، اور آسام کا مکھیہ منتری بھی وہی ہے جو بی جے پی حرکتیں کرتی ہے مسلمانوں کے خلاف۔ اسی طریقے سے اس مکھیہ منتری کا بھی گندا اور ناپاک ذہن ہے، اور جہاں جہاں بی جے پی سرکاریں ہیں وہاں بھگوا آتنکیوں کے حوصلے بلند ہے، ریپسٹوں کے حوصلے بلند ہے، کیونکہ کسی کا کچھ نہیں بگڑ رہا ہے۔ ہمارے مہاراشٹر اس کی زندہ مثال ہے کہ بدلا پور میں 2 چھوٹی چھوٹی 3 سال اور 4 سال کی بیٹیوں کے ساتھ میں جو کچھ ہوا، ابھی تک ان ریپسٹوں کا کچھ نہیں بگڑا۔ ایک سادھو ہے جس نے پورے ہندوستان کا ماحول خراب کیا پریشت محمد کی شان میں گستاخی کر کے، مگر ہمارے یہاں کا مکھیہ منتری اس کی سرکشا کی، حفاظت کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ تو جہاں جہاں بی جے پی کی حکومت ہے، نہ الپ سنکھیانک مائنورٹی محفوظ ہے، نہ مہیلائیں محفوظ ہیں۔ آئیے ناظرین، مدھیہ پردیش، یہاں پر بھی بی جے پی کی حکومت ہے، اس لیے یہاں سے بھی بڑی گھٹیا اور نیچ قسم کی حرکت کرنے والی خبر آ رہی ہے، اور یہ نیچ اور گھٹیا حرکت مدھیہ پردیش کی پولیس نے کی ہے۔ جی ہاں، ایم پی پولیس نے مسلمانوں کے ساتھ توہین آمیز رویہ اختیار کیا، جیسے چھوت کے ساتھ کیا جاتا ہے، اچھوت کے ساتھ کیا جاتا ہے، نچلی ذات کے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے ایم پی پولیس نے بالکل آتنکوادی رویہ اختیار کیا۔ شان رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے خلاف مدھیہ پردیش میں احتجاج ہوا، جس پر بی جے پی انتظامیہ نے انسانیت کو شرم کر دینے والی ناپاک شیطانی حرکت مسلمانوں کے ساتھ کی۔ چھترپور شہر میں مسلم نوجوانوں کی پولیس والوں نے پریڈ کروائی، انہیں بازار میں گھمایا، پتھر بازی پاپ ہے، اور ان سے نعرے کیسے لگوائے، یعنی مسلمانوں سے نعرے لگوائے کہ پتھر بازی پاپ ہے،
पुलिस हमारी बाप है, ऐसे नारे उन मुसलमान लोगों से, जवानों से लगवाए गए। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर यानी ट्विटर पर दी मुस्लिम ने लिखा कि मकाम छतरपुर मध्य प्रदेश पुलिस ने मुस्लिम नौजवानों का जुलूस निकाला, परेड करवाई और पत्थर फेंकना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाज करते हुए थाने में पथराव के इल्जाम में पुलिस ने नौजवानों से जबरन ऐसे नारे लगवाए। यानी मध्य प्रदेश की पुलिस भी आतंकी और आतंकवादी रवैया मुसलमानों के साथ इख्तियार कर रही है। गुज़िश्ता कल हमने आपको बताया था कि एक मुस्लिम लीडर का घर, बंगला, शानदार बंगला बुलडोजर के जरिए से गिराया गया। यह भी शैतानी और नापाक हरकत थी जिस पर पूरी दुनिया एमपी पुलिस पर थूक रही है। नाज़रीन, आज महाराष्ट्र बंद का अनाउंसमेंट, ऐलान जो है वो महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना उद्धव जी ठाकरे की जानिब से किया गया था। लेकिन खबरें आ रही है कि महाराष्ट्र बंद पर अदालत ने, कोर्ट ने स्टे लगा दिया। शरद पवार फिर बंद से पीछे हट गए, उन्होंने अपने बंद की कॉल को वापस ले लिया और उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना भवन के चौक पर मुंह पर ब्लैक पट्टी, सिया पट्टी और हाथ में सिया झंडा लेकर मैं बैठूंगा और इस तरीके से हुकूमत का, बीजेपी का और इस फैसले का गोया के विरोध जताऊंगा। बदलापुर में हुए वाकये के खिलाफ महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र बंद की कॉल की थी। ताहम महाराष्ट्र बंद के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई जिस पर हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया कि बंद गैर कानूनी है और सियासी जमात को किसी भी तरह से महाराष्ट्र को बंद करने का कोई हक नहीं है। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से एक बड़ी शर्मनाक खबर सामने आ रही है कि औरंगाबाद की एक मुस्लिम बेटी को मुबैना तौर पर 1.5 लाख रुपए में बेचा गया, फरोख्त किया गया। साबिक मेंबर पार्लियामेंट एमपी इम्तियाज जलील ने यह इंकशाफ किया है। उन्होंने बड़ी साजिश का खुलासा किया है और कहा है कि रवा बरस यानी इस साल 211 बेटियां, बच्चियां लापता हुई है। औरंगाबाद के साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने मीडिया से बात करते हुए एक बड़ी साजिश का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में आए दिन लड़कियों के लापता होने के वाक़ये सामने आ रहे। इसी कड़ी में सिर्फ इस बरस के दौरान औरंगाबाद शहर से 106 बच्चियां गायब हो चुकी है और जिले के मुख्तलिफ इलाकों से 105 बच्चियां यानी कि कुल 211 बच्चियां लापता हुई है। इस तरह का दावा साबिक मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने किया है, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते बाकायदा औरंगाबाद की एक लड़की को मध्य प्रदेश में बेचा गया था। तो इम्तियाज जलील उस लड़की के घर वालों से पूरी खबर लेकर औरंगाबाद शहर के कुछ नौजवानों के साथ बेगमपुरा पुलिस के साथ मध्य प्रदेश पहुंचे और वहां पुलिस के साथ मिलकर लड़की को रिहा करने की पूरी कोशिश की गई और लड़की को महफूज तरीके से औरंगाबाद लाया गया। इम्तियाज जलील ने बताया कि महाराष्ट्र में एक ग्रुप है जिसे गिरफ्तार करना महाराष्ट्र हुकूमत और पुलिस की जिम्मेदारी है। यह एक बहुत बड़ा ग्रुप सरगर्म है जो लड़कियों की नीलामी करवाता है। तो उन्होंने यह भी कहा कि हुकूमत को 1500 रुपये बहनों को देने की कोई जरूरत नहीं, बहनों की सुरक्षा की जाए। ये असल है शिंदे का काम जो वो नहीं कर रहे हैं और 1500 लाडली बहन योजना के तहत देकर असल मुद्दों को दबा रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के एक वफ्द ने जगदम्बिका पाल जो बाकायदा कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं, मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जेपीसी जो बनी है उसके चेयरमैन है जगदम्बिका पाल, इससे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदारान ने मुलाकात की वक्फ तरमीमी बिल को लेकर। आप जानते हैं कि मोदी सरकार एक नापाक शैतानी बिल लाना चाहती है जिसके जरिए से औकाफ की ज़मीनों पर कब्जा आसान हो जाए, हड़पना आसान हो जाए। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, हजरत मौलाना अरशद बद्री, जमीयत उलमाए हिंद ने ऐलान किया है कि अगर ऐसा होता है तो फिर हम मुल्क गिर पैमाने पर तहरीक चलाएंगे, आंदोलन करेंगे, छेड़ देंगे। तो अब बोर्ड के वफ्द ने जगदम्बिका पाल से मुलाकात की और जो कुछ उस बिल में बातें हैं उस पर एतराज़ जताया और तशवीशात को संजीदगी से सुना। बोर्ड के इस वफ्द में हजरत मौलाना फजलुर रहमान मुजद्दिदी के अलावा साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान, मौलाना अबू तालिब रहमानी, मौलाना मोतियुर रहमान मदनी, MLC
बिहार डॉक्टर खालिद अनवर और बोर्ड की जानिब से लीगल कमेटी के 2 मेंबर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एम.आर. शमशाद और एडवोकेट मिस्टर फुजैल अयूबी और बोर्ड के ऑफिस सेक्रेटरी डॉक्टर वकारुद्दीन लतीफ़ी शामिल थे। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है कि मरकजी हुकूमत केंद्र सरकार ने 156 दवाओं पर पाबंदी लगा दी है और उन दवाओं में पैरासिटामोल जो सबसे ज़्यादा चलती है आमतौर से बुखार वगैरह के लिए, दर्द वगैरह के लिए, पैरासिटामोल समेत दर्द की कई दवाएं हैं और मल्टी विटामिन की भी कई दवाएं हैं जो शामिल है, जिन पर पाबंदी केंद्र सरकार ने लगा दी है। मरकजी हुकूमत ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी करके 156 दवाओं पर पाबंदी आयद कर दी है। इन दवाओं में बुखार, सर्दी, एलर्जी और दर्द के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एंटी बैक्टीरियल दवाओं समेत वसी पैमाने पर फरोख्त की जाने वाली 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाएं शामिल है। वजीर मालियात का कहना है कि इन दवाओं के खाने से इंसानों की सेहत पर मनफी असर पड़ सकता है, निगेटिव असर पड़ सकता है। काबिल जिक्र बात यह है कि FDC दवाओं को कॉकटेल दवाएं भी कहते हैं। इनमें एक से ज्यादा दवाओं का मुरक्कब होता है। नाज़रीन, बड़ी अजीब खबर सामने आ रही है। जी हाँ, एक शौहर ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और तलाक देने की वजह यह है कि उसकी बीवी ने नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी। बस शौहर को गुस्सा आ गया कि इन दोनों की तारीफ, जिनको पूरा मुल्क गालियां देता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आखिर उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। बताया जा रहा है कि जरोल शहर पुलिस राय ने जुमा को बताया कि जरोल शहर के मोहल्ला सराय की रहने वाली मरियम ने पुलिस को शिकायती खत दिया है, जिसमें उसने लिखा है कि उसका शौहर जैनुल वो उसके साथ अयोध्या घूमने गई थी। अयोध्या में चौड़ी सड़कें, मुख्तलिफ जगहों पर बने गेट और अयोध्या की तरक्की मरियम को अच्छी लगी। इसके लिए उसने योगी आदित्यनाथ की और PM नरेंद्र मोदी की तारीफ की शौहर के सामने। उन्होंने बताया कि शौहर को योगी और मोदी की तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं आई और मरियम के शौहर ने पहले तो उसकी मरियम की पिटाई की, उसके बाद तलाक दे दी। इस मामले में मुतासिरा खातून ने जरवाल रोड थाने में शौहर जैनुल और दीगर 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि योगी और मोदी की तारीफ करने पर बीवी को तलाक मिली है। यानी इनकी तारीफ से लोग कितना गुस्सा हो जाते हैं। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के नागपुर से 2 बड़ी खबरें हमारे रिपोर्टर शहबाज अख्तर ने रवाना की है। पहली बड़ी खबर तो ये आ रही है कि नागपुर शहर में गुज़िश्ता कल बाद नमाज जुमा फौरन एक ज़बरदस्त एहतजाज, एक ज़बरदस्त आंदोलन मुसलमानों की जानिब से किया गया। और आप जानते हैं कि क्यों किया गया। एक्चुअल में महाराष्ट्र के बैजापुर में एक शैतान, मरदूद, मलऊन, एक खबीस, गुस्ताखे रसूल, जिसको फांसी जरूरी है, जिसकी गर्दन उड़ा दी जाए, हुकूमत ने उसको मार देना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि वो पूरे मुल्क के मुसलमानों ने, दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचा रहा है, मजहबी जज्बात से खेल रहा है। और इन शैतानों की सुरक्षा के लिए हमारे स्टेट का CM शिंदे सुरक्षा की गारंटी ले रहा है। इसका मतलब बीजेपी सरकार ये चाहती है कि ऐसे शैतान जिंदा रहे और वो जहर उगलते रहे, फिर मुल्क में हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलती रहे और बीजेपी को इसका फायदा होता रहे। लेकिन अब मुल्क का मुसलमान लाखों की तादाद में रोड पर आ गया है। गुज़िश्ता कल नागपुर शहर में भी हजारों की तादाद में मुसलमानों ने रामगिरी महाराज शैतान के विरोध जबरदस्त आंदोलन किया और रामगिरी महाराज पर कड़ी कार्रवाई और उसे फौरन गिरफ्तार करने की मांग की। और दूसरी खबर नागपुर की ये आ रही है कि एक ऑटो ड्राइवर, एक रिक्शा ड्राइवर ने स्टूडेंट्स बेटियों को धमकियां दी, कहा कि जो कोलकाता में हुआ तुम्हारे साथ भी वैसा करूंगा। बड़ी शर्मनाक बात है। ऑटो ड्राइवर ने तालिबात को जब धमकी दी तो फिर तालिबात ने भी पीटा और लोगों ने भी जबरदस्त उसकी धुनाई कर दी। यह वाक़या मंगल को पेश आया और इसका वीडियो जुमा को वायरल हुआ। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। दोनों लड़कियां ऑटो में सफर कर रही थी जब ड्राइवर ने उन्हें पीछे बैठने और ऊंची आवाज में बात न करने को कहा।
इस मामले पर बहस छिड़ गई। ड्राइवर ने गुस्से में आकर तालिबात को, उन पढ़ने वाली बेटियों को धमकी दी और कहा कि मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो कोलकाता में उस लड़की के साथ हुआ था। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी दर्दनाक खबर मेरे निगाहों के सामने है, नेपाल से आ रही है, जिसका ताल्लुक महाराष्ट्र के मेरे अपने शहर, मेरे अपने ज़िले जलगांव से है। करीब में जो हमारा भुसावल तहसील है वहाँ से है। नेपाल में महाराष्ट्र के अकीदतमंदों, श्रद्धालुओं की एक बस नदी में जा गिरी। बताया जा रहा है कि बस में 41 श्रद्धालु सवार थे, जिनमें से 14 लोगों की मौत हो गई है और 17 के करीब लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मरने वालों का तमाम का ताल्लुक जलगांव जिले से है। बताया जा रहा है कि नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना होने वाली बस में कुल 40-41 मुसाफिर सवार थे। ये तमाम मुसाफिर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इनमें से 14 मुसाफिरों की मौत हुई और 16 से 17 शदीद जख्मी हुए। हालांकि कुछ जगहों पर तकरीबन 22-24 की मौत भी बताई जा रही है, लेकिन जब तक ये खबर लिखी गई तब तक 14 लोगों की खबरें सामने आ रही थी। रियासत के नायब वज़ीर आला फडणवीस ने ट्वीट करके इस सिलसिले में जानकारी दी। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। उन्होंने इस बात पर दर्द का, तशवीश का इजहार किया और नेपाल पुलिस ने इस वाक़े की तस्दीक कर दी है। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने। जी हाँ, आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कल मुंब्रा में रामगिरी महाराज इस शैतान के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए आंदोलन किया मुसलमानों ने, और यहाँ नहीं बल्कि कई जगह FIR दर्ज हो भी गई है और लगातार आंदोलन हो रहे हैं। मगर कमाल की बात है कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उन पर मामला मुंब्रा में दर्ज किया गया, उन पर FIR दर्ज की गई। 50-60 नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिसको लेकर लोगों में काफी नाराजगी पाई जा रही है। यानी इस शैतान को गिरफ्तार नहीं किया गया, इस कुत्ते को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि ये पूरे मुल्क में इसने दंगे फसाद फैला दिए, इसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। लेकिन इसको गिरफ्तार करने के लिए, इस पर FIR दर्ज करने के लिए जो मुसलमान नौजवान आंदोलन कर रहे हैं उन पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। MP में तो पुलिस ने इंतहाई नीच और घटिया हरकत की। एक मुस्लिम लीडर का घर भी गिराया गया और मुसलमान जवानों को बकायदा परेड करवाई गई और पुलिस हमारे बाप है ऐसे नारे लगवाए गए। तो जगह जगह पुलिस की नापाक शैतानी हरकतें सामने आ रही है, हुकूमत की शैतानी हरकतें सामने आ रही है और उल्टा मुसलमानों पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। खैर, एक मेरी बात मुसलमान जवान भी याद रखें, बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे शहरों में कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ चमकोगिरी करते हैं। जी हाँ, चमकोगिरी करते हैं। ऐसे लोग अगर आपके शहर में धरने आंदोलन के लिए आपको पुकार रहे, बुला रहे हैं, तो थोड़ा सा ख्याल रखें। और किसी आंदोलन में आप जा रहे हैं तो इस बात को भी ध्यान रखें कि आपका वो आंदोलन आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह भी हो सकता है। जवान जज्बात में आकर अगर कुछ थोड़ी सी भी गलत हरकत कर दे तो उनकी जिंदगियां तबाह हो सकती है, क्योंकि आप मुसलमान हैं, आप ये ना भूलें, और हुकूमत आपकी खुली दुश्मन है, आप बिल्कुल ये ना भूलें। आपने अगर पत्थर भी फेंका तो उसको बम समझा जाएगा, आपने थोड़ी सी भी हरकत की तो उसको आतंकवाद से जोड़ा जाएगा। जी हाँ, और आपके तार, आपके कनेक्शन कहीं और तक जोड़ दिए जाएंगे। इसलिए जहां जहां आंदोलन धरने हो रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही है, मैं वहां पर भी जो सबसे पहले तो जो रैलियां निकाल रहे हैं उनसे भी मैं कहूंगा कि खुदा के वास्ते मुसलमान कौम का आप सौदा न करें और इसको किसी तरीके से नाजायज भड़काकर आप इनका मिसयूज न करें और जवानों की जिंदगी से न खेलें। और जवानों से भी कहूंगा कि जज्बात में आकर कोई ऐसी हरकत न करें जिससे आपको नुकसान हो। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट।